ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4th ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 4.1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ 4 ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਏ ਡਾਇਗਨਲ ਆਰ ਗਿਵਨ, ਜਦੋਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਆ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 25 ਨਵੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ABCD ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ABCD ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ AB, BC, CD ਐਂਡ DA, ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਡਾਇਗਨਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਅਤੇ BD। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? AB, BC, CD ਐਂਡ DA ਜਾਂ AD, 4 ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤੀ ਆ AC, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਆ AC। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ? ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਆ? AC ਕਿੰਨੀ ਆ? 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਡਰੋ AC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ AC ਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। AC ਕਿੰਨੀ ਡਰੋ ਕਰਨੀ ਆ? 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਫ ਕੰਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ AB ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4.5 ਆ, BC 5.5 ਆ, CD 4 ਆ ਅਤੇ AD 6 ਆ। ਠੀਕ ਆ, AC 7 ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ABCD, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ। ABCD ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ AB ਮਤਲਬ B ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨੀਚੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਗਰ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। A ਤੋਂ B ਕਿੰਨਾ ਵਾ? A ਤੋਂ B ਕਿੰਨਾ? 4.5। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 4.5 ਮਿਣ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਕੰਪਾਸ? 4.5 ਤੱਕ। 4.5 ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ, B ਨੂੰ। A ਤੋਂ B ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹੜਾ? C ਤੋਂ B ਆ ਰਿਹਾ। C ਤੋਂ B ਕਿੰਨਾ? 5.5। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ 0 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ 5.5 ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ C ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉੱਥੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਵਿਦ ਸੈਂਟਰ A draw an arc of 4.5 centimeter and with center C draw an arc of 5.5 centimeter
विच कट्स ईच अदर एट बी। ठीक है, ये मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोली आ, कंपास खोली अपने, इधर मैं कितनी खोली आ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी, हुण की रह गया डी, डी रह गया ए तो डी ते सी तो डी। ए तो डी किन्ना वा, ए तो डी किन्ना वा 6। इट मीनस मैं 0 तो लैके 6 तक कंपास खोलनी आ, फिर ए ते रख के आर्क ला लैनी है। ठीक है, फिर सी तो डी, सी तो डी किन्ना 4, फिर इस तरह 0 तो रख के 4 तक खोलनी आ, फिर आर्क ला लैनी है। ठीक है, इनू जॉइन कर देना। इधर नू मैं 4 सेंटीमीटर खोली आ, इधर नू 6 सेंटीमीटर। इत्थे किहड़ा पॉइंट आया मेरा डी। सो थर्ड पॉइंट आ जाना मेरा विद सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क। हुण वेखो बेटा वो भी ए तो ये भी ए तो, मैं इनू लिख दिनी इन डाउनवर्ड डायरैक्शन। ठीक है, विद सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड विद सेंटर सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर विच कट्स each other at D in downward direction। ठीक है, उस तो बाद मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जॉइन करता, जॉइन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। सो ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड quadrilateral। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बेटा तुहानू कंस्ट्रक्ट करना आ गया होएगा। सब तो पहला बेस नू डायगनल ले लेना वा, डायगनल तो बाद अगे चलना वा। ठीक है, इसी तरह साडा सैकेंड क्वेश्चन आ। सैकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह जंप वा, जे यू साइड वा, यू एम साइड आ, एम पी साइड आ, पी जे साइड आ, डायगनल किहड़ी पी यू। इट मीनस तुसीं पी यू तो क्वेश्चन शुरू करना है। पी ते यू विच गैप आ ना एक अखर दा, सो पी यू साडी डायगनल हैगी है। ठीक है, फिर आ जानी पैरेललोग्राम। हुण तुसीं देखोगे कि इत्थे ते 3 ही चीज़ां दित्तियां वा, बट सानू पता कि पैरेललोग्राम दियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां वा। इट मीनस मैं इत्थे एक रफ स्कैच लेनी आ, पैरेललोग्राम नाल रफ स्कैच ले लेनी आ। सब तो पहला तुसीं भी जदों कंस्ट्रक्शन करनी ना, एक रफ स्कैच ले लिओ अपने कोल आइडिया वास्ते, कि जित्थों तुहानू पता लग जाओ कि ऑपोजिट साइड्स किहड़ियां वा। इट मीनस एम ओ ते ई आर बराबर होएगी, ओ आर एम ओ ते ई आर बराबर होएगी, ओ आर ते एम ई बराबर होएगा। बिकॉज opposite sides of parallelogram are equal। ठीक है, इट मीनस ओ आर ते एम ई बराबर आ जानियां, आर ई जां ई आर ते ओ एम बराबर आ जानियां। इट ते आ मेरी की हैगी डायगनल। सेम बेटा इसे तरीके दे नाल ही इत्थों क्वेश्चन शुरू करना तुसीं डायगनल तो। क्लीयर आ, डायगनल तो क्वेश्चन शुरू करना वा। उस तो बाद आ चारों साइड्स आ, तो उपर स्टार्टिंग ते एक रफ स्कैच लै लिओ, तो जदों तुसीं स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने ना, उत्थे फस्ट चीज़ आ लिख लिओ, जां स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो उपर ही लिख लिओ आ वाली चीज़ इन्नी। ठीक है, इसी तरह रोम्बस बेस्ट आ, रोम्बस बी ई एस टी। हुण इत्थे डायगनल किहड़ी आ, इत्थे डायगनल हैगी आ ई टी। मैं ये किवें क्वेश्चन शुरू कर दी हाँ, मैं फिर इहदा रफ स्कैच लै लैनी, बेस्ट बी ई एस टी। आपां लिख देना बी ई इक्वल्स टू ई एस इक्वल्स टू एस टी इक्वल्स टू टी बी, बिकॉज all sides of rhombus are equal। it means ये सारियां किहदे बराबर आ जानियां 4.5 सेंटीमीटर दे। तो मैं डायगनल तो क्वेश्चन लेना वा, उस तो बाद सारियां ही आर्क्स जिहड़ियां वा वो 4.5 सेंटीमीटर दियां बननियां।
ठीक है बेटा। सो आई होप तुहानू समझ आ गई होएगी किद्दां करने आ क्वेश्चन फस्ट एक्सरसाइज ते। सो बेटा केयरफुली करना वा, जे तुहानू कोई डाउट आ इहदे विच दैन मेरे कोलों पुछ लेना वा, ठीक है। एक मैं तुहानू इहदे 4 ही क्वेश्चन वा, इस करके मैं एक सैकेंड एक्सरसाइज तुहानू करवा रही हाँ 10.2। इत्थे भी दित्तियां तुहानू 5 ही कंडीशनस होणगियां, जिद्दां उत्थे 4 साइड्स ते 1 डायगनल दित्ती सी, इत्थे 2 डायगनल्स ते 3 साइड्स, 2 ते 3 5 एलीमेंट्स दित्ते होए ना, 2 डायगनल्स वा ते 3 साइड्स दित्तियां होईयां वा, ठीक आ। ये वाले क्वेश्चन किवें असीं करने आ, ਇਹਦੇ 3 ही क्वेश्चन आ। सो टोटल बेटा तुहाडे कोल 7 क्वेश्चनस का ही होमवर्क आ। सो इस करके मैं तुहानू 2 एक्सरसाइज करवा रही हाँ। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वाड्रीलेटरल का नाम हैगा LIFT, जिहदे च LI हैगी 4, IF 3, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर ते IT किन्नी हैगी आ 4 सेंटीमीटर। हुण ये वाले क्वेश्चनस नूं किवें करना वा, इहदे विच भी बेटा सेम उस तरह ही असीं डायगनल नूं बेस लैना वा। हुण LI साइड आ क्योंकि कॉन्टीन्यूटी चक्कर आ, IF भी साइड आ, TL T ते L कॉन्टीन्यूटी च आ, इट मीनस ये भी साइड आ। सो डायगनल्स किहड़ियां किहड़ियां वा, डायगनल हैगी L ते F, LF विच I दा गैप है ना, IT डायगनल विच F दा गैप आ, 2 डायगनल्स आ, एक आ वाली डायगनल एक आ वाली डायगनल, तुसीं जिहड़ी मर्जी नूं बेस लै लो, ठीक आ। मान लो कि मैं LF नूं बेस लै रही हाँ, मैं इत्थे लिख दिन्नी आ, ड्रॉ कर दिन्नी आ LF किन्नी आ 4.5 सेंटीमीटर, नाल नाल मैं स्टैप्स लिख रही हाँ, द स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ड्रॉ LF इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। हुण LF इट मीनस एक तो I रह गया, एक T रह गया, मैं पहला I चूज़ करती हाँ। L दे नाल I किन्ना, L दे नाल I किन्ना 4, इट मीनस मैं फिर उस तरह अपनी कंपास जी 0 तो रख के 4 सेंटीमीटर तक खोलनी आ, L ते सेंटर लैके 4 सेंटीमीटर ते कट देनी आ। मैं याद रहे मैं इत्थे किहड़ा पॉइंट चूज़ कर रही हाँ, I पॉइंट चूज़ कर रही हाँ, रफ लिख लो भावें तुसीं कि इत्थे किते ही I पॉइंट आएगा। उस तो बाद F दे नाल I आ रहा, F दे नाल I किन्ना वा 3, फिर F तो 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के F तो 3 सेंटीमीटर ते कट कर देना। मैं इत्थे लिखांगी विथ सेंटर L draw an arc of 4 centimeter and with the center F draw an arc of 3 centimeter which cuts each other at I, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ I ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ T। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ LF ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ T ਤੇ L ਤੋਂ T ਕਿੰਨਾ ਵਾ, L ਤੋਂ T ਕਿੰਨਾ 2.5, मैं प्रकार ते 2.5 खोल के L तो रख के 2.5 की आर्क ला दिनी, T इत्थे किते आएगा। फिर दूजा किहड़ा वा IT, इट मीनस हुण मैं FT नहीं हाँ, मैं F तो नहीं शुरू करना, ये हैगा IT, इट मीनस मैं I तो प्रकार रखनी आ, 4 सेंटीमीटर खोल के कंपास 4 सेंटीमीटर खोल के I ते रखी आ, इत्थों रख के इधर नूं कट लगना है, इत्थों I तो रख के इधर नूं कट लगना। समझ लगी बेटा। उदों तो की हुंदा ਸੀ, उदों साडे कोल 4 साइड्स हुंदियां ਸੀ, मैं पहला इत्थों इत्थे कर लईदी ਸੀ, फिर इत्थों इत्थे, बट नाउ हुण की आ, हुण साडे कोल 3 ही साइड्स आ ते 2 डायगनल्स आ। मैं एक डायगनल नूं बेस लिया, फिर उहदे तो 2 साइड्स बना लियां, फिर उहदे तो तीजी साइड ते चौथी की होनी आ, चौथी डायगनल आ वेखो I तो T आ IT,
मार्क करी जाया करो कि आह वाली साइड क्वेश्चन दे विच ना मार्क कर लिया करो किहड़ी किहड़ी चीज़ हो गई किहड़ी रह गई आ, फिर कन्फ्यूजन नहीं हुंदी। ठीक आ। सो इहदा पॉइंट किवें आ जाना, विद सेंटर L ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.5 centimeter and with center I draw an arc of 4 centimeter which cut each other at point T in downward direction। हुण ये नीचे वाली साइड नूं बणिया है। ठीक है, फिर मैं की करना, जॉइन कर देना, जॉइन LI IF LT IT इदा ही किया ना, आ रह गई, इनू आप अपने को जॉइन कर देना। ठीक है, जॉइन LI IF LT IT and FT। So LIFT is required quadrilateral। ठीक आ, ये साडी हो गई क्वाड्रीलेटरल, जिहदे विच 3 साइड्स सीगियां ते 2 डायगनल्स सीगियां। ठीक आ। इहदा एक थर्ड पार्ट आ बेटा रंबस वाला, ये मैं तुहानूं मैं ड्रॉ करवानी आ बिकॉज ये डिफरेंट टाइप दा हैगा। सैकेंड क्वेश्चन तुसीं इहदा खुद करना वा। इहदे विच भी OL साइड आ कॉन्टीन्यूटी च आ, GL डायगनल आ, GL डायगनल आ, GL GD साइड आ, LD भी साइड आ, OD की आ डायगनल आ। हुण इहदा थर्ड पार्ट हैगा रंबस बेंड BEND। BEND BN किन्ना वा 5.6 सेंटीमीटर, DE किन्ना वा 6.5 सेंटीमीटर। हुण बेटा वेखो BN एक अखर छड्ड के इट मीनस है डायगनल आ भी डायगनल आ, DE ये भी विच अखर छड्डिया कॉन्टीन्यूटी च नहीं, इट मीनस ये भी डायगनल आ। इहदे विच ना सानू दोनों ही डायगनल्स दित्तियां होईयां ते साइड कोई भी नहीं दित्ती हुई। 5 कंडीशनस ते कोई भी नहीं आ, सिर्फ 2 डायगनल्स दित्तियां होईयां वा। सो ये क्वेश्चन किवें करना वा, इहदे विच सब तो पहला बेस वो साइड लो जिहड़ी ईवन होएगी। एक मिनट बेटा सॉरी, वो वाली साइड बेस लो जिहड़ी ऑड होएगी। जे दोवें ईवन आ दैन जिहड़ी मर्जी ले लो, जे दोवें ऑड आ तां भी कोई गल नहीं, जिहड़ी मर्जी ले लो। बट जे एक ईवन एक ऑड आ, कोशिश करो बन बेटा दोवां तरीक़े नाल जाएगी। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि तुसीं ऑड ही लैनी जां ईवन ही लैनी है, बट कोशिश करो कि ऑड लो। ठीक आ, मैं की करदी हाँ, मैं इत्थे DE लै लैनी हाँ 6.5 सेंटीमीटर। स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DE इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। उस तो बाद मैं इहदा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ड्रॉ करना वा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ऑफ DE। परपेंडिकुलर बाइसैक्टर किवें बनाईदा, D ते प्रकार रखनी हाफ तो, एस्टीमेटेड हाफ जिथे होएगा, जिथे तुहानूं लगदा कि इत्थे हाफ, उस तो वध भावें फुल्ली खोल लो, मतलब हाफ तो वध जानी चाहिए। मैं भावें फुल्ली खोल लो, D ते रख के E जिन्नी खोल के आर्क लगा लेनी, उपर भी नीचे भी। इस तरह E ते रख के इधर नूं आर्क लगा लेनी, नीचे भी तो उपर भी। ठीक है, इदा मैं इहदा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर बना लेना। ठीक है, तो वह वाला परपेंडिकुलर बाइसैक्टर DE नूं O पॉइंट ते कट्टूगा, विच कट्स DE एट O। हुण की करना वा, हुण
साढ़े को एक साइड रह गई BN 5.6, मैं 5.6 का हाफ कर लेना वा। पहला इसका हाफ करो, टेक हाफ ऑफ BN, हाफ ऑफ 5.6 कितना आ जाना वा, 2 2 ज़ा 4 1 लैफ्ट, 2 2 ज़ा 4 1 लैफ्ट, पॉइंट आ गया 16 2 8 सा, इट मीनस हाफ कितना आ गया ਇਹਦਾ 2.8 सेंटीमीटर। जिन्ना हाफ आया 2.8 प्रकार ਦੇ ਨਾਲ 2.8 मैं इत्थों खोल लेना, 2.8 खोल के ओ ते रख के ऊपर भी निशानी ला दो, ओ ते रख के नीचे भी, 2.8 खोल के प्रकार ऊपर भी निशानी ला दो, नीचे भी निशानी ला दो। ठीक है, इत्थे पॉइंट दे दो B, इत्थे दे दो N। ठीक है, विद सेंटर O, जिहड़ी चीज़ का डाउट होगा तुहानूं स्टैप्स तो क्लीयर हो जाएगी बेटा। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। which cut bisector at point B and N। ਇਹਦਾ लाइन का की मतलब कि O सेंटर लैके उपर भी तो नीचे भी, उपरली डायरैक्शन भी तो नीचे की डायरैक्शन दे विच भी 2.8 सेंटीमीटर कट्टो, इधर भी 2.8 सेंटीमीटर कट्टो। ਜਿਹੜਾ बाइसैक्टर ते B पॉइंट ते N पॉइंट ते कट दो। ठीक है, उस तो बाद जॉइन कर दो BD BE EN ते ND नूं। सॉरी है बेटा वाधू बज गई। ठीक है, जॉइन BD BE BN एंड सॉरी BN नहीं EN and ND। So BEND is required rhombus। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ 4.1 ਐਂਡ 2। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਕਸਟ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4.3 ਤੇ 4.4। ਠੀਕ ਆ, 6 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।